Hello everyone, this is Neha Vijay. Welcome in the biochemistry theory class. Yes, today's topic is high energy compounds and ATP as a universal energy currency. Yes, dear students, this is the bioenergetics part 2. High energy compound. What is the high energy compound? High energy compound we also known as the energy rich compound. Yes, compound in biological system which on hydrolysis yield free energy. Free energy, what is the free energy? That is available for to do work. When energy rich compound is break down, then some energies are released. This is the free energy. Yes, this is ATP. When ATP is released, it gives negative 7.3 calorie per mole energy. Yes, those compound yield high energy. Yes, they are the high energy compound. When some compound that yield energy less than negative 7.3 kilocalorie per mole, then it is known as the low energy compound. This is the high energy compound introduction. Most of the compound high energy are certain phosphate group. Yes, high energy compound may we have to remember that phosphate group is the most important. All phosphate group are attached with the high energy compound, but one is exception. Yes, which is acetyl coenzyme A. In this, no any phosphate group means they also called as high energy compound. Only acetyl coenzyme A don't have any phosphate group to attach with the high energy bond. The bond high energy compound which yield energy upon hydrolysis. Yes, when compound hydrolysis occur, then we gain or we occur high energy bond. These bond noted by the squiggle. Yes, we will denote by this symbol. This is squiggle. Yes, Fritz Albert Lehmann, these are scientists. This invented this notation. What is the free energy? Free energy those which are available or utilizable to do work. Yes, हमें काम करने के लिए जो एनर्जी फ्री होती है. Yes, we can do more work. Our body can do every work. Then some energy are available in the free. This is the free energy. Yes, free energy is denoted by the delta G. Yes, it is also known as Gibbs free energy. For endergonic and for hexagonic, we are already studied in the bioenergetics part 1 what is the endergonic, what is the hexagonic. If endergonic reaction occur, then delta V will be positive. If hexagonic, then delta G is the negative. If we will discuss about the classification, it is the 5 types. Yes, it is divided into 5 groups: pyrophosphate, enol phosphate, acyl phosphate, thiol phosphate, guanidophosphate and phosphagens. Yes, fifth one. First one is pyrophosphate. What is the pyrophosphate? In this, pyrophosphate attached with the anhydride bond. What is the bond? Anhydride bond. Remember this. You have to remember in all types bond which bond are attached with this. Then in pyrophosphate attached with the acid anhydride bond. Yes, this bond how it formed? This bond is formed by the condensation or mixing with the acid group or its derivative. जब phosphoric acid और उसकी derivative जब अटैच होते हैं, कंडेंस होते हैं, तब ये pyrophosphate ग्रुप बनता है. विच बॉन्ड? एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड. एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज ATP. yes, adenosine triphosphate. This is have two high energy diphosphate bond. Yes, in structure you can see that two high energy phosphate bond attached with each other. This is the high energy bond. And in this, phosphoanhydride bond is attached with the energy diphosphate bond. What is the enol phosphate? Enol phosphate, which bond is present? Enol phosphate bond. Yes, one is acid anhydride bond in pyrophosphate and second was enol phosphate. In this, which bond is present? Enol phosphate bond. Enol phosphate bond.
दिस इज फॉर्म व्हेन फॉस्फेट ग्रुप, ये कैसे बनेगा, कैसे देखिए जुड़िएगा, जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। यस, आप स्ट्रक्चर से समझिए, जब फॉस्फेट ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होगा तब ये बॉन्ड बनेगा। कैसे? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट में इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉस्फेट बॉन्ड से अटैच होगा तब आपका इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जांपल है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP, रिमेंबर। Third one is acyl phosphate. In this acyl phosphate example is 1,3-bisphosphoglycerate. In this compound form the reaction between, कैसे बनेगा ये रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप। जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और फॉस्फेट एसिड ग्रुप के साथ इन दोनों का रिएक्शन होगा, अटैच होगा, कंडेंस होंगे, मिक्स होंगे, तब आपका ये वाला एसाइल फॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा। यस, थर्ड वन हो गया एसाइल फॉस्फेट एंड फोर्थ वन इज थायोफॉस्फेट। इन दिस फॉस्फेट हाई एनर्जी बॉन्ड इज एब्सेंट। क्यों? बिकॉज दिस इज द एक्सेप्शन, वी ऑलरेडी डिस्कस एसिटाइल कोएंजाइम A और एसाइल कोएंजाइम में, दिस इज द एक्सेप्शन, नो फॉस्फेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, नो फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट। यस, दिस इज द थायोएस्टर बॉन्ड इज रिजल्ट बिटवीन। अब ये कैसे बनेगा थायोल एसिड फॉर्म? जब थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और थायोल के बीच में जब रिएक्शन होगा तब आपका बनेगा थायोल फॉस्फेट ग्रुप। यस, एग्जाम्पल है एसिटाइल कोएंजाइम A। एंड फिफ्थ वन इज लास्ट वन फॉर हाई एनर्जी कंपाउंड इज ग्वानिडोफॉस्फेट। ग्वानिडोफॉस्फेट, इसको हम फॉस्फेजेंस भी बोलते हैं। इट ग्वानिडोफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फेजेंस। द बॉन्ड इज नोन एज, इसमें जो बॉन्ड जुड़ा है वो क्या चीज़ है? ग्वानिडीन फॉस्फेट बॉन्ड। ग्वानिडीन फॉस्फेट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म व्हेन द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप का जब ग्वानिडीन ग्रुप के साथ अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप का जब ग्वानिडीन ग्रुप के साथ अटैच होगा तब ये वाला बॉन्ड बनेगा ग्वानिडोफॉस्फेट बॉन्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इज, एग्जाम्पल क्या है इसका? फॉस्फोक्रिएटिन। फॉस्फोक्रिएटिन, फिफ्थ वन इज कंप्लीट। अब आपको इसमें सब में अच्छे से आपको शॉर्ट में क्या प्रिपेयर करना है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या एग्जाम्पल है और कैसे अटैच है एग्जाम्पल के साथ में। देन फर्स्ट वन इज पायरोफॉस्फेट, सेकंड एसाइल फॉस्फेट, थर्ड इनॉल फॉस्फेट। इसके साथ देखिए पायरोफॉस्फेट में आपका बताया था कि दो हाई एनर्जी बॉन्ड जुड़े हुए, इसलिए इसको हम हाई एनर्जी बॉन्ड बोलते हैं। इसके एग्जांपल ATP और पायरोफॉस्फेट। सेकंड बोल रहा है एसाइल फॉस्फेट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। यस, इसका एग्जांपल क्या था? 1,3-bisphosphoglycerate एंड कार्बामोइल फॉस्फेट। इनॉल फॉस्फेट में क्या है? यहाँ पर फॉस्फेट रिंग के साथ एक आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका एग्जांपल क्या था? PEP की फुल फॉर्म बताई थी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। यस, फॉस्फोइनोल एंड पाइरुवेट। क्लियर? ये लो एनर्जी क्या है? जिसके अंदर अपनी 7.3 से कम रिलीज हो रही है। ATP इन सब के हमारे एग्जाम्पल है। जो स्टैंडर्ड अपना ATP 7.3 उससे जो भी कम, जैसे 6.6 ADP, 5 7.3 से कम, 3.8, ये सब लोग, इसलिए ये सब आते हैं लो एनर्जी कंपाउंड्स के अंदर। यस, ATP को हम क्या बोलते हैं? ATP इज द यूनिवर्सल करेंसी। यस, ATP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई एनर्जी कंपाउंड इन द लिविंग सेल। इट कंटेन एन एडेनिन ग्रुप। देखिए ATP का हम आप पूरा एग्जाम्पल, हम ATP को अच्छे से पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नोट में आ सकता है आपका। देखिए क्या क्या चीज़ इसके पास? एडेनिन ग्रुप, शुगर एंड ट्राइफॉस्फेट। यस, अब आपको एक बार स्ट्रक्चर से क्लियर करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें देखिए, एडिनोसिन। यस, और आपके इसमें एडिनोसिन ये है, ये आपका ट्राइफॉस्फेट है 1 and 2। इसके अंदर दो देखिए हाई एनर्जी बॉन्ड जुड़े हुए हैं। एंड दिस वन इज द राइबोस 5 शुगर। यस, राइबोस शुगर। दिस वन इज एडिनोसिन, दिस इज द राइबोस शुगर एंड दिस वन इज द ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड। अब इसमें ये बोल रहा था इट कंटेन एडेनिन ग्रुप, शुगर एंड ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन इज कंसिडर्ड एज द हाई एनर्जी कंपाउंड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ 2 फॉस्फेट एनाइड। अभी हमने आपको बताया था 2 फॉस्फेट एनाइड बॉन्ड इसके साथ जुड़े हुए हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप यील्ड, जब हाइड्रोलाइसिस होगा फॉस्फेट ग्रुप का तो इसके साथ हाई एनर्जी रिलीज होगी। यस,
देखिए कितना, -7.3 कैलोरी पर मोल। एटीपी कैसे, लिंक बिटवीन द कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, हम आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझाएंगे। यहाँ हम एक पूरा साइकिल है आपके पास कि कपल्ड रिएक्शन कैसे हो रही है कैटाबॉलिज्म में भी, एनाबॉलिज्म में, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म मतलब जब ब्रेक डाउन होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, जब एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होगा तो कोई ना कोई एनर्जी यूटिलाइज होगी, मतलब सिंथेसिस ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, इंटरसेल्यूलर प्रीकर्सर, पूल, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स, इन सबको काम करने के लिए कोई एनर्जी है तो हमें यहाँ एटीपी से मिल जाएंगी। पर यहाँ जब यूज़ करी तो कम हो गई, तो यहाँ एटीपी में वापस एक एनर्जी जुड़ेगी, जब एनर्जी सोर्स हमें मिलेगा तब यहाँ वापस एटीपी से जुड़ के अपने सारे काम में हेल्प करेगी। दिस इज द लिंक, वी कैन से एटीपी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द catabolic and anabolic reaction. This is the link. And if we discuss about the catabolic, anabolic, yes, we have already discussed in the diagram or image. Then please in language, catabolic reaction can give energy. Catabolic में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन, तो एनर्जी रिलीज हुई, गिव दी एटीपी को। एटीपी में क्या किया, हमें एनाबॉलिज्म चाहिए, हमें कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई ना कोई हमारे बायोमोलिक्यूल में से हमें सिंथेसिस हो रहा है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब जो कैटाबॉलिज्म से एनर्जी निकली वो यहाँ यूटिलाइज हो गई और हाइड्रोलाइसिस हो गया एटीपी का। इट ट्रांसफर फॉस्फोराइल ग्रुप हाई एनर्जी कंपाउंड लेस एनर्जी, हाई एनर्जी कंपाउंड से फॉस्फेट का ट्रांसफर हो रहा है, लाइक एडीपी है तो यहाँ एक पी और जुड़ा तो ये बन गया एटीपी, एएमपी है तो वहाँ एक जुड़ के एडीपी बन गया। तो यहाँ पर जो ग्रुप किसका ट्रांसफर हो रहा है, फॉस्फोराइल ग्रुप का है एनर्जी पर, ये समझ चुके हैं हम। अब हाइड्रोलाइसिस जब हुआ, एडिनोसिन पर 2 फॉस्फेट है, ठीक है, एक फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन हुआ तो कितनी एनर्जी, -7.3 कैलोरी पर मोल आपकी रिलीज हो गई, ये एनर्जी निकल गई और अब आपका बन गया एडीपी। तो यहाँ एक रिमूवल हो गया, इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ। आप देखिए यदि आपको एक लैंग्वेज में देखें तो ये आपका एडिनोसिन, राइबो शुगर, यहाँ से ट्राइफॉस्फेट जुड़े हुए हैं, देखो ये बीच बीच में फॉस्फेट आपके हाई एनर्जी कंपाउंड है, ब्रेक डाउन हुए ये दोनों हाई एनर्जी कंपाउंड लिखा हुआ है। जब हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये एडीपी बन गया और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिमूवल हो गया। रीसिंथेसिस ऑफ मतलब एटीपी वापस सिंथेसिस हो रहा है, जब हमें एनर्जी चाहिए, जब हमारा एनाबॉलिज्म हो रहा है, तो एडीपी जब एक पायरोफॉस्फेट ग्रुप जब अटैच हुआ तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो गई, प्लस लिख रहा है जुड़ी यहाँ पर एनर्जी, देन आपका एटीपी सिंथेसिस हो गया। द फॉर्मिंग ऑफ एडीपी इनटू एटीपी, यस, एनर्जी रिक्वायर, दिस इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, we have already discussed in the part 1 बायोएनर्जेटिक्स। यस, कितनी एनर्जी आपकी यूटिलाइज करती है, कितनी एनर्जी रिक्वायर है, -7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके। कपल्ड रिएक्शन क्या है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। यस, इन दिस एटीपी जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो एडीपी प्लस पीआई बनेगा, जब यहाँ ग्लूकोज के साथ एक एनर्जी जुड़ रहा है तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और जब एटीपी काम आ रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो आपके ब्रेक डाउन होकर एटीपी से एडीपी में बन रहा है। ये कैटाबॉलिज्म हम लोग कपल रिएक्शन की बात कर चुके हैं। यदि एक्सरगोनिक एंडरगोनिक की यदि रिएक्शन से बात करें, जब एडीपी ठीक है बन रहा है किससे, एटीपी से, तो ये एटीपी से एडीपी बना, तब आपकी कुछ एनर्जी रिलीज हुई, मतलब डाई बना, टाई से डाई बना, तो एक फॉस्फेट रिमूवल हुआ तो कुछ एनर्जी निकली, ठीक है। ये आपके एंडरगोनिक प्रोसेस में एज ए फ्यूल वर्क करेगी, हमें हेल्प करेगी। अब जब एडीपी से एटीपी बन रहा है तो जब हमारे को रिक्वायर है, अब यहाँ पे एनर्जी ऐसे यूटिलाइज होगी, एडीपी डाई से ट्राई बन जाएगी। दिस इज द एक्सरगोनिक रिएक्शन और इट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। यस, अब फंक्शंस क्या है, क्या क्या हम कैसे काम करेंगे। अब पॉलीसेकेराइड से एमिनो एसिड्स में, डीएनए आरएनए में मेटाबॉलिज्म की बात करें, मूवमेंट बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन मसल्स को, फिलामेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसे कैरियर प्रोटीन का काम करता है। सिक्रेशन की बात करें तो इट वर्क एक्सोसाइटोसिस, यस, लाइसोसोम की फॉर्मेशन में काम आता है। केमिकल प्रोसेस में क्या एटीपी का सिंथेसिस होगा, तब आपकी क्या होगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टिव में रिएक्शन होगा। समरी बात करें तो एटीपी क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी, कॉमन इंटरमीडिएट मैनी रिएक्शंस लाइक, सबसे पहले तो लिंक बात करें,
यूनिवर्सल सभी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ईजिली पार्टिसिपेट सभी रिएक्शन में, लाइक हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें, ग्लाइकोजनोलाइसिस की, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो ईजिली पार्टिसिपेट कर जाता है और हमें हेल्पफुल करता है। ड्राइव मोस्ट बायोलॉजिकल फंक्शन, बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस है वो भी हेल्प करता है। वन मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ द, एक अकेला मॉलिक्यूल बहुत सारे जॉब्स को, अपने बहुत सारे नंबर ऑफ द बायोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Please like, comment and share and subscribe for my new video.